કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્ર? મજામાં ને? તો આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીના પાઠ 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई विषय अभ्यास करीશું। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। तो શું કહીશ કે આપણા જીવનને સુવિધાપૂર્વક બનાવવામાં વૈજ્ઞાનિકોનું મુખ્ય યોગદાન રહ્યું છે। प्रस्तुत इकाई में हम डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है। એટલે કે આ જે इकाई છે તે આપણે विक्रम साराभाई જેવા अद्भुत व्यक्तित्वથી परिचित करावे છે, जिन्होंने वैज्ञानिक प्राद्योगिक शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। तो શું કહીશ કે તેમણે વિજ્ઞાનમાં, શિક્ષણમાં, ઉદ્યોગમાં, વાણિજ્યમાં, વ્યવસાયમાં તે બધા ક્ષેત્રે देशની प्रगति માટે उल्लेखनीय कार्य કર્યું છે। उन्होंने उनके जीवन की घटना से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो શું કહીશ કે તેમના જીવનની ઘટનાથી પ્રેરિત થઈને અવલોકન, પરીક્ષણ અને પરિશ્રમથી વૈજ્ઞાનિકની દૃષ્ટિકોણ છે વૈજ્ઞાનિક જે દૃષ્ટિકોણ છે એને વિકસિત કરીને આપણે પણ એક મહાન વૈજ્ઞાનિક બની શકીએ છીએ और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। અને શું કહીશ કે માનવ જાતિની अनुपम सेवा કરી શકીએ છીએ। તો અહીંયા જે બાળ મિત્રો ફોટો આપેલો છે એ ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈનો આપેલ છે। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वो मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। तो શું કહીશ કે આ એક એવા વૈજ્ઞાનિક હતા જે માત્ર 2 વર્ષના હતા ત્યારે જ ગુરુદેવ રવિન્દ્રનાથ ઠાકુરે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે આ બાળક છે એ મોટો થઈને બહુ જ યશસ્વી બનશે અને और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। અને શું કહીશ અને તે બાળકે તેમની ભવિષ્યવાણી પોતાના કર્મોથી સાચી સાબિત કરી દીધી। क्या आप जानते हैं वो कौन थे? तो તમને પ્રશ્ન પૂછે છે કે શું તમે જાણો છો તે કોણ હતા? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। તે હતા આપણા મહાન વૈજ્ઞાનિક ડૉક્ટર વિક્રમ साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। तो શું કહીશ કે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈનો જન્મ 12 ઓગસ્ટ 1912 ના રોજ અમદાવાદમાં થયો હતો। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। તેમનો પરિવાર એક પ્રતિષ્ઠિત ઉદ્યોગપતિ પરિવાર હતો। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। તેમના પિતાનું નામ અંબાલાલ અને માતાનું નામ સરલા દેવી હતું। વિક્રમ સારાભાઈ 8 ભાઈ બહેન थे। એટલે કે વિક્રમ સારાભાઈ છે બરાબર એ 8 ભાઈ બહેનો હતા। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनकी सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। तो શું કહીશ કે બાલ્યકાલ છે એટલે કે બાળપણથી જ પ્રતિભાવાન એટલે કે પ્રતિભાવાળા ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈના બચપનનો આ પ્રસંગ છે તે તેમના સફળતા હાસિલ કરવાના બુલંદ इरादाને દર્શાવે છે। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। જ્યારે તે 5-6 વર્ષના હતા ત્યારે તે તેમના પરિવાર સાથે शिमला गया। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नामों ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। शिमला में તેમના પિતાજી શ્રી અંબાલાલના નામે ઢેરો ચિઠ્ઠિયા आती थी એટલે કે આવતી હતી। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। तो શું કહીશ આ જોઈને બાલક વિક્રમના મનમાં પણ એ ઈચ્છા થઈ કે તેના નામ પર પણ ઘણા બધા પત્ર આવે। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिया।
હવે એમના પિતાજીના નામે ઘણી બધી ચિઠ્ઠી આવતી હતી, તો તે જોઈને તેમને પણ મન થયું કે મારા નામે પણ ઘણી બધી ચિઠ્ઠી આવે, એટલે કે પત્ર આવે. તો તે શું કરે છે કે કેટલા બધા લિફાફા લે છે, તેની અંદર પોતાનું નામ અને સરનામું લખી અને ડાકઘરમાં નાખી આવે છે. ફિર ક્યા થા ઉનકે નામ પર ઢેરો ચિઠ્ઠિયા આને લગી. પછી શું કહેશે, પછી તો શું હતું, તેમના નામ પર પણ ઘણી બધી ચિઠ્ઠીઓ આવવા લાગી. पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की ઈચ્છા हुई. હવે પિતાજીએ જોયું કે વિક્રમના નામ પર ઘણી બધી ચિઠ્ઠી આવે છે, તો તેમને પણ બાળક વિક્રમના મનમાં જે આ કામના પાછળ રહેલો જે ઉદ્દેશ છે એ જાણવાની ઈચ્છા થઈ. અસલિયત માલુમ હોને પર ઉन्हें હસી આવી. જ્યારે એને સચ્ચાઈ ખબર પડે છે ત્યારે સાંભળી અને તેમને હસવું આવે છે. लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा. પરંતુ સફળતા મેળવવાની ઈચ્છા જાણીને તેમને પણ સારું લાગ્યું. જ્યારે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈના પિતાશ્રીને ખબર પડે છે કે આ બધી ચિઠ્ઠી ડૉક્ટર વિક્રમે પોતાના નામે જ લખી છે, કારણ કે તેને પણ ઘણા બધા પત્ર આવે, તો એ સાંભળીને પહેલાં તો તેમને હસવું આવે છે, એટલે કે એ જાણીને પહેલાં તો તેમને હસવું આવે છે, પરંતુ પછી એને એવું થાય છે कि सफलता मेळववानी एनी इच्छा जोईने तेमने सारू लागे छे. जब वो 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते. तो शू कहे कि ज्यारे ते 8 वर्षना हता त्यारे ते साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करता अने लोकोने अचंभित करी देता. उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे. तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने साहसिक कारनामों છે બહુ જ કારનામા હતા, એ બહુ જ પ્રિય હતા. ગણિત તથા ભૌતિકી કે પ્રતિ ઉનકી ગહરી દિલચસ્પી दी. તો શું કહેશે, ગણિત અને ભૌતિક વિજ્ઞાન વિશે તેમની ગહેરી દિલચસ્પી હતી. उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की थी. તેમણે મેટ્રિકની પરીક્ષા सन 1934 में पास કરી હતી. सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की. तो शू कहे कि तेमणे सन 1934-37 सुधी में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद थी इंटर की पढ़ाई करी. सन 1937 में इंग्लैंड चले गए. तो शू कहे कि सन 1937 में ते इंग्लैंड जता रहा. सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिक में BSc की परीक्षा में सफलता प्राप्त की. सन 1940 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की गणित और भौतिक में BSc की परीक्षा में सफलता प्राप्त करी. तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत लौट आए. तत्पश्चात એટલે કે તેના પછી જ્યારે બીજું વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થતાં જ ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ છે ભારત પાછા આવી ગયા. भारत में उन्होंने सर CV रामन तथा डॉ होमी भाभा का सानिध्य मिला. भारत में तेमणे सर CV रामन तथा डॉ होमी भाभाનું सानिध्य प्राप्त થયું. वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए. અને અહીં આવી અને જે રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતા આંદોલન ચાલતું હતું તેનાથી બહુ જ પ્રભાવિત થયા. सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे. सन 1942 में तेओ मृणालिनी स्वामीनाथन साथे विवाह सूत्र में बंधे, એટલે કે તેમની સાથે લગ્ન કર્યા. उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में PhD की उपाधि हासिल की. तो शू कहे कि तेमणे अंतरिक्षनी गहराईओमांथी आववावाळी रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करी अने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयथी सन 1947 में PhD नी એટલે કે પદવી અથવા કે ડિગ્રી ઉપલબ્ધ એટલે કે ઉપાધિ હાસિલ કરી. હવે બાળમિત્રો આપણે કોસ્મિક કિરણો પર કોસ્મિક કિરણો વિશે થોડીક માહિતી મેળવી લઈએ. તો આ જે કોસ્મિક કિરણ છે તે આકાશગંગામાંથી આવવાવાળી બ્રહ્માંડીય કિરણો છે.
તે કિરણોના બારામાં આપણે હજી સુધી પૂરી જાણકારી ઉપલબ્ધ થઈ નથી. તે કિરણોના અધ્યયન દ્વારા આપણે સૌરમંડળના જે જટિલ રહસ્યો છે, બરાબર, તેની જાણકારી મેળવી શકીએ છીએ. તો તે કોસ્મિક કિરણો. હવે આગળ જોઈએ. ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है. ब्रह्मांड અને સૌરમંડળના એટલે કે સૂર્યમંડળના કેટલાક જટિલ પ્રશ્નોના પ્રાયોગિક હલ निकालवानो श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई ने प्राप्त है. यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी. હવે તેમનો સુઝાવ હતો કે આ કોસ્મિક કિરણો ઉપર પ્રયોગ કરવા માટે હિમાલયની જે ઊંચી ચોટીયા છે, બરાબર, સર્વાધિક ઉપયુક્ત વ અનુકૂળ હોગી. તો કે તે સર્વાધિક એટલે કે સૌથી વધુ ઉપયોગી અને અનુકૂળ રહેશે. इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लेंस एक प्रयोगशाला स्थापित की. तो શું કહેશ કે તે માટે ભારત સરકારે ગુલમર્ગમાં વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણોથી सज्जित एक प्रयोगशाला की स्थापना करी. डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई. तो शू कहे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई निजी प्रयासों कारण सन 1947 में वैज्ञानिक अनुकरण डॉक्टर विक्रम साराभाई निजी प्रयासों कारण सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित करवामां आवी, जिससे वह आजन्म संबंध रहे અને શું કહેશ કે જેનાથી તે પૂરી જિંદગી, બરાબર, સંબંધ રહ્યા એટલે કે તેમાં જોડાયેલા રહ્યા. साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी. અને શું કહીશ કે સાથે જ તેમણે વસ્ત્ર ઉદ્યોગની તકનીકી સમસ્યા એટલે કે કાપડ ઉદ્યોગની તકનીકી સમસ્યાઓનું હલ કાઢવાના ઉદ્દેશથી અમદાવાદની અંદર ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી રિસર્ચ એસોસિએશનની સ્થાપના કરી એટલે કે આધારશિલા રખી. ભૌતિક અનુસંધાન પ્રયોગશાला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे. तो शू कहीश कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला पर डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर ते कार्य करता रहे. सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए. सन 1961 में तेमणे परमाणु ऊर्जा आयोगना सदस्य बनावामां आव्या. डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया. तो शू कहीश कि डॉक्टर होमी भाभानी मृत्यु थयुं तेना पछी परमाणु ऊर्जाना जे संस्था हता, बराबर, तेनो बधो भार डॉक्टर એટલે કે युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया था. એટલે કે બધું परमाणु ऊर्जा संस्थान बधा कार्य की जवाबदारी डॉक्टर विक्रम साराभाई पर आई गई. उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया. तेमणे भारतीय अनुसंधान केंद्र गठन कर्युं एटले के ए संस्था है, बराबर, तेने बनावी. डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने और डॉक्टर विक्रम साराभाई है ते तेना पहला अध्यक्ष बना. यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है અને તે તેમની उनकी अगुवाई એટલે કે તેમના આગેવાની અને પરિશ્રમ એટલે કે મહેનતનું પરિણામ છે कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं. तो शू कहीश कि ते तेमनी ज अथक मेहनत अने આગેવાનીનું પરિણામ છે કે ભારતમાં દૂરસંચાર, દૂરદર્શન, મૌસમ વિજ્ઞાન જેવા પ્રક્ષેપિત ઉપગ્રહ છે, બરાબર, એ અંતરિક્ષમાં સફળતાપૂર્વક કાર્ય કરી રહ્યા છે.
डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर विक्रम साराभाई પોતાનું પૂર્ણ જીવન ભારત અને વિજ્ઞાનના વિકાસ માટે સમર્પિત કરી દીધું। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। तो શું કહીશ કે ભારતના વિકાસમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન માટે તેમણે ઘણા રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માન પ્રાપ્ત થયા। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। तो तेमने 1962 अंदर डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपवामां आव्यो, 1966 में पद्मभूषण और 1972 में मरणोत्तर एटले के मरण थई गया पछी पद्मभूषण जेवा बराबर एवोर्ड बराबर आपवामां आव्या। एटले हवे आपणे पद्मभूषण और पद्म विभूषण विषे थोड़ी जानकारी मेळवी लईए। तो पद्मभूषण है ते बराबर कोईपण क्षेत्रनी में उच्च स्तर पर उल्लेखनीय सेवा माटे प्रदान करवामां आवे छे एटले के आपवामां आवे छे। अने पद्म विभूषण है ते कोईपण क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा करवा माटे आपवामां आवे छे। अने आ बंने एवोर्डनी अंदर सरकारी कर्मचारी के द्वारा दी गई सेवाएं भी शामिल है। तो शुं कहीश के आ एवोर्ड में कोईपण सरकारी कर्मचारीओए पण सेवाएं आपेली होय ते पण शामिल छे। हवे आपणे आगळ जोईए। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। तो शुं कहीश के निशस्त्रीकरण थी संबंधित केटलीक महत्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में पण भारतना प्रतिनिधि तरीके डॉक्टर विक्रम साराभाई रह्या। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन सदस्य रहा। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को विज्ञान विभाग अध्यक्ष बन्या। उन्होंने इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। तेमने इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन प्रमुख बनावामां आव्या। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना में शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंचना 14મી જે परिषद थी तेना प्रमुख बन्या। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषदना पहला उपाध्यक्ष बन्या और पछी विज्ञान विभागना अध्यक्ष बनावामां आव्या। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद वह कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। तो शू कहे छे बाळ मित्रों, ते खाली मात्र उच्च कोटिना वैज्ञानिक न हता, परंतु आटली व्यस्तताओं के बावजूद के आटला व्यस्त रहता हता ते बावजूद के तेना उपरांत पण कला, शिक्षण और समाज माटे पूरतो समय काढ़ी लेता हता। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। अने शुं कहीश के तेमना ज प्रयासोना कारणे अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्था की स्थापना थई। यहाँ वह जन सामान्य के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते हैं। जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। अने शुं कहीश के अहीं तेओ सामान्य लोकोनी विज्ञान प्रत्येनी रुचि जागृत करवानुं कार्य करता रह्या। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम
के लांचिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। હવે શું કહીશ કે તે 21 ડિસેમ્બર સન 1971નો કાળો દિવસ હતો, જ્યારે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈને ત્રિવેન્દ્રી લોન્ચિંગ સ્ટેશન માટે થુમ્બામાં કાર્ય નિરીક્ષણ કરવા માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા। वहाँ वह एक होटल में ठहरे थे। तो શું કહીશ કે ત્યાં તેઓ એક હોટલમાં રોકાણા હતા। वही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। અને શું કહીશ કે ત્યાં જ હૃદયની ગતિ रुकवाથી તેમનું मृत्यु થઈ ગઈ। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। અને શું કહીશ કે તેમનું મૃત્યુ થવાથી વિજ્ઞાનમાં નિત નવા આયામો એટલે કે ક્ષેત્રોને જોડવાવાળું એક જીવન ચક્ર છે એ સદા માટે અટકી ગયું। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। અને આવી મહાન પ્રતિભાને શત શત નમન। હવે શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ। इरादा तो विचार, संकल्प, लिफाफा तो कागज का वह चकोर थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज पत्र रखकर भेजा जाता है। ढेरों એટલે કે बहुत ज्यादा, अधिक, लेस એટલે કે सुसज्जित, अनुसंधान એટલે કે आविष्कार, खोज, संशोधन અને ઉપાધિ એટલે કે પ્રતિષ્ઠા સૂચક પદ અથવા કે ખિતાબ।